A very pleasant morning to all the dear students of class 10. Today in this video we are going to discuss our chapter number 12, that is area related to circles. Okay, you have known many different figures, many plane figures we have known, and the rectangles, square, parallelogram, triangles, and we have learned the way to find their areas and their perimeter. So basically area is the space occupied by the figure and the perimeter is the sum of the boundary of that figure. And you have an idea from earlier classes, from smaller classes, about the perimeter and the area of circle. So perimeter of circle is your circumference, that is 2 pi r, and this is the formula to find the circumference of the circle, 2 pi r. Okay, and the formula to find out the area of circle is pi r square. So in the earlier classes, in smaller classes, you have learned the way to derive these formulas, and you also have learned that this pi is basically a constant. Okay, and this pi was a constant, and you know that this is the ratio of the circumference to the diameter of a circle. Okay, it means when you draw a circle of any radius, so then finding the circumference and the diameter, so the ratio of the circumference and the diameter was always come to be as constant. ठीक है, वो एक constant आता है which is 22/7. Okay, and this 22/7 is named as pi. It is given a fixed value, and you know that this pi we consider the value of pi as 22/7 or 3.14. Okay, actually it is a larger value. It is 3.14146 and so on. Okay, so it has been found out by to the correct places many decimal place. Okay, means इससे आगे ये बहुत ही continued है. It is a large value, but generally for our questions we use generally up to 2 places of decimal, that is 3.14. So in the questions we use pi is equals to 22/7 unless stated. अगर आपको क्वेश्चन में स्टेट किया गया है, it is said that use pi is equals to 3.14, तभी आप 3.14 pi use करते हैं, otherwise you will use pi as 22/7. So you know that this pi is a constant, which is the ratio of circumference to the diameter of the circle, and we have derived the formula. Also, the area of circle was derived by the paper cutting and pasting activity you have done in the 7th standard. So that was means putting them in the form of rectangle, if you remember, and we have derived the formula to find the area of circle as pi r square. So the main concept that we are going to discuss in this video is this is the basic about the area and the circumference of the circle. Now what we need to find, the main concept that we are going to discuss is area of sector and segments of a circle. So in the chapter 10 we have learned that what was sector and what was segment. Now in this chapter, in this video, we are going to discuss that how do we find the area of a sector of a circle and segment of a circle. So let us understand that. So this is your area of sector and segments of a circle. Then you know, again repeating the definition of the sector and what we mean about the mean by saying the sector. And this is your another circle, and this chord is drawn. So this is your a chord. So let us consider that this is a circle with center O. This is also a circle with center O. This is your A and B. Then and mark this as P. And this is your chord AB. So class 10, these are the two circles I have drawn. Okay, so you can see that this is with center O. This you can mark as O dash or O. Okay, no issues. Then you can see that this is the sector. Okay, this figure is showing the sector of the circle. You can see that this APB is an arc. Okay, and this arc is subtending an angle like at center, and I can take this angle as theta. Okay, so मैंने इस angle को theta consider कर लिया. So APB
telling in the first circle APB is the arc and it has subtended an angle theta at the center of this circle. Okay, so you can see sector और segment में जो major difference था, the major difference in their definition is that sector में क्या होता है, this portion, this is the sector, this portion is called sector when it is bounded by an arc, okay, and the radius of the circle. So you can see that OA and OB are the radius, these are R as radius. So when the portion is bounded by arc and the radius, then it is sector, okay, and the smaller portion is minor sector, और जो आपका बचा हुआ portion होगा, this larger portion, ये सारा जो outside portion है, ये आपका सारा major sector हो गया, okay. In this second figure you can see that this portion is bounded by the arc ARB, ठीक है, ARB arc से bounded है ये portion and the chord AB, ठीक है, chord AB से. So वो पोर्शन जो आपका आर्क और कोड से बाउंडेड है वो आपका सेगमेंट होता है. सेक्टर और सेगमेंट में इतना ही डिफरेंस है, ये आर्क और रेडियस से बाउंडेड है और ये आर्क और कोड से बाउंडेड है. तो ये आपका सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है स्मॉलर पोर्शन, मेजर सेगमेंट है लार्जर पोर्शन, ओके. सो जब आपके पास सिर्फ सेक्टर या सेगमेंट सिर्फ ये वर्ड लिखे होते हैं, then normally you will consider it as minor sector and minor segment, okay. अगर major segment होगा तो वो specified होगा, वहाँ पर stated होगा that it is major sector. So otherwise you will take them, you will consider them as minor sector and minor segment. अब हम area की बात करते हैं. Class 10 you can see that अगर मैं sector की area की बात करूँ, first talking about the sector, okay. So area of sector की अगर हम बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की अगर बात करते हैं, सो यू कैन सी दैट दिस इज एन एंगल थीटा, ओके, एंड दिस इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क APB, ओके. व्हेन आई कंसीडर दिस थीटा, अब ये जो थीटा आपका, यू कैन सी दैट दिस AOB विच इज़ थीटा, ये एक एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, ये एक स्मॉलर एंगल है. अगर मैं इस AB को एनलार्ज करते रहूँ, मीन्स मैं इसको समझ लीजिए कि OA एक थ्रेड है, OB एक थ्रेड है आपके हाथ में और दोनों रेडियस हैं, और आप उनको एनलार्ज करें और रोटेट मतलब मूव करें, AB पॉइंट को आप यहाँ तक मिला दें, ठीक है, इसको पूरा थीटा को पूरा ओपन कर दें, मतलब जितना ये एक्यूट है ना इसको पूरा ओपन कर दें, तो आपको पता चलेगा दैट विद the theta, when your theta is 360 डिग्री, ठीक है ना. अगर मैंने इसको पूरा मतलब एक ये टू OA और OB टू थ्रेड हैं और वो बिल्कुल एक साथ जॉइंट है, ठीक है, किसी पॉइंट पर मैंने एक साथ हैं वो बिल्कुल, और फिर मैंने उनको पूरा ऐसे रोटेट कर दिया विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, ओपन कर दिया. तो जब थीटा को मैंने 360 डिग्री बना दिया, द एरिया विल बी क्या होगा, व्हेन थीटा इज 360 डिग्री, एरिया विल बी, ठीक है, एरिया क्या होगा आपका πr², क्योंकि वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल. जब ये पूरा थीटा 360 डिग्री होगा तो बेसिकली इस सर्कल का एरिया होगा, और सर्कल का एरिया मुझे पता है कि πr² है. सो व्हेन डिग्री मेजर ऑफ दिस एंगल इज 360 डिग्री, द एरिया ऑफ द सेक्टर, और यू कैन से दिस, ये सेक्टर पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक तरीके से सर्कल ही बन जाएगा. So this area of sector will be πr². Then when theta is 1 degree, area क्या होगा आपका, area will be, area of sector will be πr² by 360 डिग्री, ठीक है ना. मतलब मेरे पास क्या था, थीटा 360 है तो एरिया कितना हो गया πr². अगर थीटा 1 डिग्री है तो एरिया कितना हो गया πr² डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. सो वैसे ही इफ थीटा, सो व्हेन मेजर, सो बेसिकली क्लास 10 व्हाट यू आर टेकिंग इन द, you are taking theta is 360 degree, it means the measure of the angle by this arc, ठीक है ना, बाय एन आर्क द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड, वो हमने 360 डिग्री अगर लिया, देन एरिया विल बी πr². व्हेन दिस थीटा मीन्स व्हेन द मेजर ऑफ एंगल इज 1 डिग्री, अगर मेजर ऑफ एंगल 1 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा πr² डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक है. दिस इज द यूनिटरी मेथड. सो व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल इज थीटा, अगर थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा πr²,
पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय थीटा, ठीक है ना। मतलब मुझे 1 डिग्री का पता है कि इतना होता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा डिग्री अगर होगा या थीटा मेजरमेंट अगर होगा तो वो कितना होगा, मेजर ऑफ एंगल अगर थीटा होगा तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय थीटा, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज एरिया ऑफ एनी सेक्टर विद एंगल, जो एंगल आपका सबटेंडेड होगा विद एंगल थीटा, उसका एरिया सेक्टर का ये होगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स यू कैन सी, आप ये देख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया होता है सर्कल का, और थीटा एंगल सबटेंड जो हो रहा है डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, तो ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। ये एक फ्रैक्शन है, मीन्स एक पार्ट है पूरे एरिया का, और एरिया सेक्टर भी क्या होता है, एक पार्ट होता है पूरे सर्कल का। सो इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम हेयर दैट दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल थीटा। द फॉर्मूला इज थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट अस सी. So likewise the area of sector you can also see the length of the arc of a sector, ठीक है ना। मतलब अगर किसी सेक्टर ने, अगर कोई सेक्टर फॉर्म हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क भी फॉर्म होती है, ठीक है, तभी सेक्टर फॉर्म होता है आपका। तो उसकी आप लेंथ, उस आर्क की लेंथ भी निकाल सकते हैं विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा ऑफ द सेक्टर। सो यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, अगर आप यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क, दिस ए पी बी, इस आर्क की लेंथ की अगर बात करें, देन व्हेन द थीटा इज 360 डिग्री, ओके, इट मीन्स थीटा इज 360 डिग्री, कहने का मतलब ये है क्लास कि व्हेन मेजर ऑफ द एंगल, देन मेजर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज 360 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल अगर 360 डिग्री है, अगर ये पूरा 360 डिग्री एंगल की बात करूँ, तो आर्क की लेंथ या कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ क्या होगी, पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यही होगी ना। 360 डिग्री में तो पूरा सर्कल आता है, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मीन्स 2 पाई आर, ठीक है। इट मीन्स व्हेन द मेजर ऑफ एंगल इज 360 डिग्री, द लेंथ ऑफ द आर्क or the length of the complete circle is 2 pi r. When measure of angle, similarly applying the unitary method, when measure of angle is 1 degree, तो कितना हो जाएगा आपका 2 pi r divided by 360 डिग्री, ठीक है ना। मीन्स 360 डिग्री के लिए 2 pi r है, 1 डिग्री के लिए 2 pi r डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, और थीटा के लिए व्हेन मेजर ऑफ द एंगल इज थीटा, तो थीटा अगर मेजर ऑफ एंगल है तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क जो ये मेजरमेंट होगी बाय अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड, और सेम तरीके से ही वी कैन गेट दैट द लेंथ ऑफ द आर्क विल बी थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 pi r. ओके, और you have this that 2 pi r डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री मेज़र के लिए था, तो थीटा डिग्री मेज़र के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय थीटा, और उसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिख दिया। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द आर्क ऑफ, फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर, ओके, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद एंगल थीटा, ठीक है ना, ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एंगल theta, which you can verify, for which you can refer the figure 1. Okay, and this way that we have find out the area of sector with angle theta and the length of the arc. This is the length of the arc of sector of angle theta. Okay, of angle theta. So basically हमने क्या यूज़ किया, we have used the unitary method. We have used that अगर ये थीटा 360 डिग्री हो तो एरिया पूरा पाई आर स्क्वायर होगा, तो हमने थीटा की कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लिया कि कितना एरिया होगा। सो now the area of sector is depending upon this theta and the radius of the circle. Okay, and these two are the formulas to find the area of the sector and the लेंथ ऑफ द आर्क टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं हम और इस आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। नाउ अब सेकंड सर्कल की अगर मैं बात करूँ, सेकंड फिगर की, यू कैन सी दैट वी हैव टू डिस्कस द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द एरिया ऑफ सेगमेंट एज वेल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की जब हमें बात करनी है, यू कैन सी that this is your segment, this is your minor segment. Okay, so अगर मुझे minor segment या major segment का एरिया निकालना है, so let us consider first for the area of minor segment. तो अगर minor segment की एरिया की बात करें, let us join these two radius O dash A, ठीक है, मैंने ये join कर दिए हैं,
and this O dash B. Okay, so these two radius are joined. When these two radius are joined and I have to find the area of this minor segment. तो आप देख सकते हैं कि आप एरिया कैसे फाइंड कर सकेंगे क्लास. यू कैन ऑब्जर्व कि आपको ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकेंगे. यू विल हैव what you have, this is these are the radius r. Okay, and this is the corresponding angle theta. समझ लीजिए कि इस आर्क ए आर बी ने सबटेंड किया है at the center this angle theta. So you have to find the area of the shaded portion. So you can see when you are having, you can see that to find the area of shaded portion you are having this sector that I have drawn with the red pen. Okay, this is the sector you are having and you know the way to find the area of this sector. तो अगर मैंने ये पूरा एरिया और उसके लिए मुझे थीटा और आर चाहिए तो आई हैव थीटा एंड आर. और अगर मैंने ये सेक्टर का पूरा एरिया निकाल लिया और उसमें से मैंने ये एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया, ठीक है, तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट आपका क्या है, दिस इज द सेगमेंट. सो मुझे तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालूंगी मैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करके. सो व्हेन एवर यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट तो आपको उसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करना होगा एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डिपेंड करेगा, दिस कैन बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और दिस कैन बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो दैट विल डिपेंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि आप इस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे. दैट विल बी गिवन, द वे विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, जो आपको समझना है वो ये समझ रहे हैं कि अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपको सेक्टर का एरिया निकाल कर उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा. ओके, सो देन इन दिस वे यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट. और अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मेजर सेगमेंट मीन्स ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है ना, ये सारा एरिया. तो वो तो आप एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर दीजिए, मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा. और मेजर सेक्टर का एरिया अगर आपको निकालना है तो मेजर सेक्टर का एरिया तो आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप अगर आपके पास थीटा गिवन है तो 360 डिग्री में से माइनस करके ये वाला एंगल निकालिए. ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे आप और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला में ये वाला पुट कर देंगे तो आपको मेजर सेक्टर की कॉरिस्पॉन्डिंग एरिया मिल जाएगा डायरेक्टली विद द फॉर्मूला. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट. अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लिया बाय वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, ठीक है, अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो यू विल बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एरिया ऑफ सेक्टर कि हमने कैसे ये फॉर्मूला आपका थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर या थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर क्यों है. ओके, एंड हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ द segment. So this is all in this video.